نظر آداب ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات. سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر. صدر جمہوریہ نے کہا معیشت کو دوبارہ پٹری پر لانے کی جائے گی کوشش, ترقی میں اقلیتوں کی ہوگی برابر کی حصے داری. محسن شیخ قتل کیس میں مزید 2 گرفتاریاں, مہاراشٹر کے مختلف شہروں اور کرناٹک میں احتجاجی مظاہرے. مغربی بنگال اسمبلی میں مدرسہ ترمیمی بل منظور, دانشوروں کو مداخلت کا خدشہ. اور بین ریاستی مقابلے میں سلور میڈل پانے والے ویٹ لفٹر اظہر الدین کی ٹرین میں پراسرار موت, محکمہ ریلوے پر لاپرواہی کا الزام. سب سے پہلے آج کی بڑی خبر. صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا. مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران صدر جمہوریہ نے حسن آزادی کی کئی دہائیوں بعد بھی اقلیتی طبقے کی پسماندگی کو بدبختی قرار دیا. پرنب مکھرجی نے حکومت کی فلاحی اسکیمات کے فوائد پسماندہ اقلیتوں تک نہ پہنچنے کو اقلیتی طبقے کی پسماندگی کی اصل وجہ بتایا. اقلیتی طبقے کی فلاح کے لیے صدر جمہوریہ نے نیشنل مدرسہ ماڈرنائزیشن پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا. It is unfortunate that even after several decades of independence, sections of minority communities continue to suffer from poverty as benefits of government schemes do not reach them. My government is committed to making all minorities equal partners in India's progress. The government will specially strengthen measures to spread modern and technical education among minority communities, and a national madrasa modernization program will be initiated. صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کے خطاب پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمان سلطان احمد نے حکومت کو اقلیتوں کے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دینے کا مطالبہ کیا. پونے میں پیش آئے سافٹ ویئر انجینئر قتل واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا. الپ سنکھ کے بارے میں جو کہا گیا ہے, آج کے دن دیش کے جو الپ سنکھ خاص طور پہ مسلمان بھائی ہیں خوف و ہراس میں ہیں. جو واقعہ پونا کا ہوا ہے, سرکار کو صاف لفظوں میں صاف لہجوں میں آ کر کے یہ کہنا چاہیے کہ دیش کے الپ سنکھ, دیش کے مسلمان بھائی اس دیش میں سرکشت ہیں اور سرکشت رہیں گے. صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے نئی حکومت کے آئندہ 5 برسوں کی پالیسی کا خاکہ اپنے خطاب میں کھینچا. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام نے متحد, مضبوط اور جدید بھارت کے حق میں ووٹ دیا ہے اور نئی حکومت عوام کی خواہشات کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی. ملک کو ترقی کی ڈگر پر لے جانے, معیشت کو پٹری پر واپس لانے, بیرونی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے, مہنگائی پر کنٹرول کرنے, بدعنوانی کے خاتمے اور ملک کی ترقی میں اقلیتوں کو برابر کا حصہ دار بنانے سمیت مختلف موضوع پر انہوں نے روشنی ڈالی. ایک بھارت شریشٹھ بھارت یعنی متحد و مضبوط و بہتر ہندوستان بنانا, سب کا ساتھ سب کا وکاس یعنی ترقی میں سب کی حصہ داری, ہر ہاتھ کو ہنر, ہر کھیت کو پانی, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, یہ نعرے نما یک جملے صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے اپنے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران اپنے خطاب میں کہے. ان نعروں سے نئی حکومت کے ایجنڈے اور ترجیحات واضح ہوتے ہیں. انہی کو پیش نظر رکھ کر ان کے حصول کے لیے ان تمام محاذ پر نئی حکومت کام کرے گی جو ملک کو ہمہ جہت ترقی کی راہ پر لے جائے. مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے عام انتخابات کے نتائج کو عوام کی امیدوں کا غماز قرار دیا. They have voted for a united, strong and modern India. ایک بھارت, شریشٹھ بھارت. My government will work to fulfill these aspirations with the involvement of all the 125 crore people of this great country. My government is committed to nurturing the right environment
of actualizing this mandate of the people. For this, it pledges itself to the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, which can be fulfilled only through your active participation. It is a commitment to providing 33% reservation to them in the Parliament and State Legislative Assembly. With a commitment of Beti Bachao, Beti Padhao, my government will launch a mass campaign for saving the girl child and enabling her education. सदर जमहूरिया ने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए नई हुकूमत की सियासी, इक्तिसादी और खारजा पॉलिसी का खाका पेश किया। उन्होंने मुल्क की मौजूदा इक्तिसादी सूरत हाल को मुश्किल करार देते हुए इसे पटरी पर लाने के लिए मुसलसल कोशिश करने की बात कही। महंगाई पर काबू पाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है तो गैर मुल्की बैंकों में पड़े काले धन को मुल्क वापस लाने के लिए भी संजीदा इक़दाम करने की बात कही गई है। सदर जमहूरिया ने कहा कि नई हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने की कोशिश करेगी ताकि रोजगार के नए मौक़े खुले। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हुकूमत ऐसी पॉलिसी वज़ा करेगी जिसकी ठोस बुनियाद हो और जो पायदार हो, शफ़ाफ हो। On the economic front, we are passing through an extremely difficult phase. For 2 consecutive years, our GDP growth has been less than 5%. Tax collection has declined. Inflation continues to be at an unacceptable level. Thus, putting the Indian economy back on track is paramount for my government. We will work together to usher our economy into a high growth path, rein in inflation, reignite investment cycles, accelerate job creation, and restore the confidence of the domestic as well as international community in our economy. My government is determined to rid the country of the scourge of corruption and the menace of black money. As a first step in this direction, the government has already constituted a SIT to unearth black money stashed abroad. This will be followed by vigorously by proactively engaging with the foreign governments. अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने अक़लियतों को यकीन दहानी कराई कि नई हुकूमत तरक्की में उन्हें बराबर का हिस्सेदार बनाएगी। उन्होंने इस साल मानसून के औसत से कम रहने की पेशगोई पर हुकूमत को तैयार रहने को भी कहा। सदर जमहूरिया ने नौमुंतखब अरकान पार्लियामान को मुबारकबाद दी और कहा कि नई हुकूमत जमहूरी इदारों की साख बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। दहशतगर्दी के मामले में DRDO के साबिक जूनियर साइंटिस्ट एजाज अहमद मिर्जा को क्लीन चिट दिए जाने का हुकूक इंसानी की तंजीम APCR ने खैर मकदम किया है। ताहम कानूनी माहिरीन का कहना है कि एजाज मिर्जा को अब इस मामले में पूरी राहत के लिए कुछ दिन इंतजार करना होगा। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के इल्जामात का सामना कर रहे एक और होनहार नौजवान एजाज मिर्जा को NIA ने क्लीन चिट दे दी है। बंगलुरु में APCR के सीनियर एडवोकेट अकमल रिजवी का कहना है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने गुज़श्ता माह एजाज अहमद मिर्जा के खिलाफ कोई सबूत न मिलने की बुनियाद पर उन्हें क्लीन चिट दे दी है। इस सिलसिले में NIA ने अदालत को वाकिफ करवाया है। अकमल रिजवी ने कहा कि अदालत के हतमी फैसले के लिए एजाज अहमद मिर्जा को 24 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। इस केस के अंदर 27 तारीख को NIA ने एजाज अहमद मिर्जा जो DRDO के जूनियर साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहे थे उनको स्टैट्यूटरी बेल पे छोड़ा गया था, लेकिन अब NIA ने उनको क्लीन चिट दी है। लेकिन अभी कोर्ट के सामने मामला है। कोर्ट उनकी रिपोर्ट के ऊपर अपना जो फैसला होगा वो 24 तारीख तक गालिबन आ जाएगा और हमको उम्मीद है कि एजाज अहमद मिर्जा को भी
मतीउर रहमान सिद्दीकी की तरह क्लीन चिट मिल जाएगी। 2012 में दहशतगर्दाना साजिश के इल्जाम में महकमे दिफा के इदारे DRDO में जूनियर साइंटिस्ट के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले एजाज मिर्जा समेत कर्नाटक के तकरीबन 15 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अंग्रेजी रोजनामा के सहाफी मतीउर रहमान और निजी कंपनी के मुलाजिम यूसुफ नालबंद पहले ही बरी हो चुके हैं। ETV न्यूज बंगलुरु। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। IT प्रोफेशनल कत्ल केस में पुलिस ने मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन दोनों का ताल्लुक भी हिंदू राष्ट्र सेना से है। इस तरह इस केस में हिंदू राष्ट्र सेना से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार शुदगान की तादाद 19 हो गई है। शिवाजी और बाल ठाकरे की काबिल एतराज तस्वीरें फेसबुक पर नामालूम अफराद के जरिए अपलोड किए जाने के बाद बरहम हुजूम ने IT प्रोफेशनल मोहसिन शेख को पिछले हफ्ते पुणे के हदसपार में पीट कर मार डाला था। पुणे के नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेख मोहसिन सादिक के कत्ल के खिलाफ बेंगलुरु में IT मुलाजिमों ने एहतजाजी धरना दिया। शहर के BTM लेआउट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की तंजीम ITEC ने वाकये की मजम्मत करते हुए मोहसिन सादिक को ताज़ियत पेश की। एहतजाजियों ने कहा कि मुल्क में बाज़ तंजीमें समाज में नफरत फैलाते हुए मुल्क के सेकुलर और जमहूरी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। एहतजाजियों ने इस तरह की शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। एहतजाज में मुख्तलिफ IT कंपनियों के मुलाजमीन ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत शिरकत की। We are a group of IT employees in Bangalore, and we want to express our sorrow and deep anguish in the incident that happened in Pune. So we came to know that one of our colleagues who is working in Infosys, he was killed while he was going back to his home by some religious fundamentalists. So we noticed that recently there has been rise in religious fundamentalism all over India. The government today should come out very, very strongly against such incidents, arrest the culprits, and send a very strong message that India is a secular democracy as enshrined in our constitution. You know, India is a secular socialist democracy as enshrined in our constitution. All these things clearly show that we are not even basic human dignity. जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। धार्मिक भावना सभी का ठेस पहुंचती है, लेकिन इसके लिए किसी को बेरहमी से मारना वो अच्छी बात नहीं है। तो इसी के विरोध में मतलब ऐसा घटना फिर से ना हो हमारे समाज में, इसी के लिए हमारा एक ये प्रयत्न है कि हम कुछ लोगों को हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचे। पुणे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहसिन शेख के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। ITBT का मरकज समझे जाने वाले शहर बेंगलुरु में IT प्रोफेशनल एक जगह जमा होकर इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं। इनका मुतालिबा है कि हुकूमत खातियों को न बख्शे और नफरत फैलाने वाली तंजीमों के खिलाफ पाबंदी आयद करे। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज बेंगलुरु। फेसबुक मामले में पुणे के IT इंजीनियर शेख मोहसिन के कत्ल की मजम्मत के लिए महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी धरने दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से नांदेड़ जिला कलेक्टर के दफ्तर के धरना दिया गया। पार्टी के जिला सदर फिरोज खान गाजी की क़यादत में किए गए एहतजाजी धरने में दर्जनों नौजवानों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वेलफेयर पार्टी की जानिब से जो पूना में मोहसिन सादिक शेख को शहीद किया गया, उसके एहतजाज में धरना आंदोलन रखा गया है। हमारा ये मुतालबा है कि इस मुल्क में मुस्लिम समाज, मुसलमान एक बड़ी माइनॉरिटी में रहते हैं और मुल्क में जो
खौफ और हरास का मुसलमानों में माहौल पैदा किया जा रहा है, तो हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों से खौफ और हरास के माहौल को ख़त्म करे। और उधर औरंगाबाद में भी मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। इसके अलावा दीगर अजला में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मोहसिन शेख कत्ल मामले की आला सतही जांच की जाए, खाती अफराद को फांसी की सजा दी जाए, हिंदू राष्ट्र सेना पर पाबंदी आयद की जाए, साथ ही मोहसिन शेख के अफराद खाना की भरपूर माली मदद की जाए और उसके भाई को सरकारी मुलाजमत दी जाए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने वजीर दाखिला आर पाटिल के खिलाफ भी नारे लगाए। मगरबी बंगाल में मदरसा तालीम को नई पहचान देने के लिए बंगाल असेंबली में मगरबी बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन तरमीमी बिल 2014 पास हो गया है, लेकिन असेंबली में यह बिल पास होने के साथ ही तनाजे का शिकार भी हो गया है। मगरबी बंगाल मदरसा तालीम को अपने अरबी व जदीद उलूम के बाइस मुल्क भर में मकबूलियत हासिल है। मौजूदा हुकूमत ने मदरसा निजाम तालीम को मौसर बनाने के लिए नए बिल के जरिए कई तब्दीलियों का इरादा जाहिर किया। बिल में जहां मदरसा शिशु केंद्र को मदरसा बोर्ड के तहत लाने का फैसला किया गया, वहीं बोर्ड के तहत मदरसा व जनरल एजुकेशन निजाम की शुरुआत पर मुस्लिम तंजीमों ने हैरानगी का इजहार किया। रियासती वजीर मुमलिकत गयासुद्दीन मुल्ला ने नए बिल से मदरसा तालीम के फरोग की उम्मीद जताई है, जबकि मुस्लिम तंजीमों ने बिल पर एतराज जताया और हुकूमत को मेमोरेंडम रवाना करने का भी फैसला किया। বিলটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে আমরা বলছি, দীর্ঘদিন মাদ্রাসা নামে ছিল, মাদ্রাসা বোর্ড ছিল, মাদ্রাসা স্কুল ছিল, কিন্তু গুছিয়ে মাদ্রাসা যে গুছিয়ে পড়াশোনার দিকে সেরকম ছিল না। আমাদের 10টা স্কুল আছে পুরো পশ্চিম বাংলায়, সেটাকে আরো বেশি করে স্কুল করে আমরা যাতে ক্লাস 1 থেকে মাদ্রাসা অন্তর্গত মাদ্রাসার ভিতরে পড়াশোনা করে সেই দুটোর উপর আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। एक जगह में बोला गया कि मदरसा बोर्ड के अंदर 2 तरह की एजुकेशन रहेंगे, एक जनरल एजुकेशन सिस्टम और एक मदरसा एजुकेशन सिस्टम। हम लोग का दावा है कि मदरसा बोर्ड के अंदर सिर्फ मदरसा एजुकेशन सिस्टम ही रहे। कोई जनरल एजुकेशन सिस्टम करना है तो उसके लिए सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम तो है ही, मदरसा बोर्ड के अंदर जनरल एजुकेशन सिस्टम कायम करने का कोई जरूरत नहीं है। नए बिल में मदरसा बोर्ड के सदर को तमाम इख्तियारात दे दिए गए हैं और रिटायरमेंट की उम्र 62 साल कर दी गई है। रियासती वजीर ने उम्र में इजाफे का जवाब भी बताया, लेकिन मुस्लिम तंजीमों के खदशात कुछ और ही हैं। জেনারেল কাস্টের সঙ্গে সংখ্যালঘু আমরা যে ওবিসি দিচ্ছি, সার্টিফিকেট দিচ্ছে, সুযোগ সুবিধা বেশি হচ্ছে, আমরা এটা 62 বছর করতে চাচ্ছি। এই জন্য জরুরি ভিত্তিতে যদি করতে পারা যায়, জরুরিভাবে একটা দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। ये करके वो जो मदरसा बोर्ड के जो कौमी मेंबरान है उनको जो पावर है वो पावर को खत्म करने की ये साजिश है, ये नहीं करना चाहिए। प्रेसिडेंट को तो हर वक्त वो अपॉइंटमेंट करते हैं हुकूमत, और हुकूमत कुछ चाहे तो वो विदाउट मीटिंग बोर्ड के प्रेसिडेंट के हाथ से वो मदरसा के ऊपर लागू कर सकते हैं, ये नहीं करना। मदरसा तरमीमी बिल पर अपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद असेंबली में पास करा लिया गया है और आने वाले दिनों में इस बिल पर हुकूमत क्या मौक़िफ़ अपनाती है, ये देखना अहम होगा। ईटीवी न्यूज़, कोलकाता। बिहार में अक़लियती फलाह के मंसूबों को जमीन पर उतारने के लिए महकमे अक़लियती फलाह के अफसरों की एक मीटिंग हुई। अक़लियती फलाह के वजीर नौशाद आलम ने मीटिंग में शिरकत की और तमाम अफसरों को अक़लियतों के ताल्लुक से स्कीमों पर अमलावरी की हिदायत दी। महकमा अक़लियत फलाह के नए वजीर नौशाद आलम ने आज बिहार के सभी जिलों के जिला अक़लियती अफसरों की मीटिंग मुनक़िद की। इन्हीं अफसरों के कंधों पर सूबे की अक़लियती स्कीमों के निफाज की जिम्मेदारी है। खासतौर से इस मीटिंग में स्कॉलरशिप, हॉस्टलों की तामीर और MSDP स्कीम को नाफिज करने का हुक्म जारी किया गया। MSDP का जो मामला है उसमें जो अब तक इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है, उसके बारे में कड़ाई से निर्देश दिया गया है कि वो एक अच्छा योजना है। MSDP का पैसा खास तौर से अल्पसंख्यक के लिए है। अगर इसका हम सही इस्तेमाल करेंगे तो इसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा और लगेगा कि अल्पसंख्यक के लोगों को फायदा पहुंच रहा है। मीटिंग में सूबे के होम सेक्रेटरी और महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आमिर सुबहानी भी मौजूद थे। आमिर सुबहानी के मुताबिक
सभी जिलों में अक़लियती फलाह अफसरों की बहाली की गई है ताकि अक़लियतों की फलाही स्कीमों का निफाज हो सके। अलग अलग तरह की जो स्कीमें हैं, स्कॉलरशिप की है, ट्रेनिंग की है, हॉस्टल की है, उसमें हर जिले का रिव्यू किया गया और कोशिश की गई कि जो पैसे हैं, जो काम होना है, वो जल्दी खर्च हो, अच्छी तरह खर्च हो, अच्छा काम हो और अच्छे नतीजे आए। महकमा अक़लियती फलाह का चार्ज संभालने के बाद अक़लियती वजीर की ये पहली मीटिंग थी। तवक्को के मुताबिक गर्मजोशी का मुजाहरा भी किया गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि अमली इक़दाम के मामले में भी ये रवैया बरकरार रहेगा। ATV न्यूज पटना। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। बिहार में अक़लियती स्कीमात पर अमलावरी न होने पर मजहबी रहनुमाओं ने हुकूमत को कटहरे में खड़ा किया है। उलमा के मुताबिक एक तो जमीनी सतह पर अक़लियती स्कीमात का निफाज नहीं होता, जबकि दूसरी जानिब अक़लियती तबके का इंतशार भी इन स्कीमात को उन तक पहुंचने नहीं देता। बिहार में अक़लियती स्कीमों के निफाज पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। इस बार मजहबी रहनुमाओं ने अक़लियती स्कीमों के सिलसिले में हुकूमत पर तनकीद की है। मुसलमानों के लिए जो प्लान लाया जाता है तरक्की का, और वो तरक्की कागज़ पर एक मैप बनता है, लेकिन ज़मीन पर उतारने के लिए नौकरशाहों को मुरतब किया जाता है, चाहे उस पर DM हो या DDC हो या SDO हो या BDO हो या ग्राम तक के लोग हों। आप अगर वहां तक पहुंचेंगे तो पता चला कि कागज पर सारा खेल हो गया और जमीन पर कुछ नहीं उतरा। इन मुश्किलों को देखते हुए मजहबी रहनुमाओं ने खुद मुस्लिम समाज से पहल करने की अपील की है। माइनॉरिटी के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर बिल बजट बनाए जाते हैं, वही पैसे इंदिरा आवास में इस्तेमाल कर लिए गए, फलां जगह कर लिया गया, फलां जगह कर लिया गया। तो हमको ये लगता है कि जहां ये हुकूमतें देना नहीं चाहती, वहीं ये हाल है कि हमारे जो लोग हैं वो लेना भी नहीं जानते हैं। उसके लिए ज़रूरत है इस जमहूरी मुल्क में इत्तेहाद का, इत्तेफाक का, एक जमीयत का। लेकिन हमारे यहाँ मुस्लिम कौम जो है वो बस बटी हुई है मुख्तलिफ ज़ातियात में, बिरादरियात में। ज़्यादातर मंसूबों की आवाम को वाकफियत भी नहीं हो पाती और नहीं जानते हैं वो कि सरकार किन किन खतूत पर हमारा ताउन करना चाहती है, उसको बेहतर बनाना चाहती है। तो सरकारी सतह पर मेरा मशवरा तो ये होगा कि जो मंसूबा आप बना रहे हैं उसकी एडवोकेसी होनी चाहिए और दूर दूर तक इसकी खबर लोगों को दी जानी चाहिए कि आपने पसमादगी को दूर करने के लिए ये मंसूबा बनाया है। इसलिए कि अगर अक़लियती तबका अगर पीछे रह जाता है तो सिर्फ ये उनका नुकसान नहीं है, बल्कि रियासत और मुल्क के तरक्की के निशाने को वो अपनी नासमझी की वजह से फेल कर देंगे। हुकूमत की मुजरिमाना गफलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अक़लियतों के हुकूक के लिए अब उलमा को पहल करनी पड़ रही है। ETV न्यूज पटना। शिद्दत की गर्मी और प्यास की वजह से एक होनहार वेट लिफ्टर की जान चली गई। ये वाकया मुरी एक्सप्रेस में पेश आया। बताया जाता है कि ज़हनी तौर पर माजूर वेट लिफ्टरों का एक ग्रुप जम्मू कश्मीर से टाटानगर वापसी के लिए मुरी एक्सप्रेस के जरिए आ रहा था। इस ग्रुप ने पटियाला में बैन रियासती मुकाबलों में शिरकत की थी और अजहरुद्दीन नामी वेट लिफ्टर ने इन मुकाबलों में सिल्वर मेडल हासिल किया था। अजहर का ताल्लुक जमशेदपुर से बताया जाता है। कामयाबी की खुशी से सरशार वेट लिफ्टरों का ये ग्रुप घर लौट रहा था, लेकिन शिद्दत की गर्मी और प्यास के सबब अजहरुद्दीन ने पानी तलब किया, लेकिन फौरी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं हुआ और अजहर ने गर्म पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद उसकी हालत बिगड़ गई। अजहरुद्दीन को इलाहाबाद ता मिर्जापुर के दरमियान डॉक्टरों ने जांच के बाद इसे मुर्दा करार दे दिया। अजहर के साथियों का इल्जाम है कि रेलवे हुक्काम मुनासिब तवज्जो देते तो एक होनहार खिलाड़ी की जान बच सकती थी। इसका नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन था, जो मंद बुद्धि का विकलांग था, और यह जो है विकलांग बच्चों का पटियाला में जो है अंतर प्रांतीय प्रतियोगिता थी उसमें हिस्सा लेने गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उसकी मृत्यु पानी के कारण नहीं हुई है, बल्कि गर्मी के कारण होना प्रतीत होता है।
ट्रेन में उसका जो कि वो बहुत गर्मी था, गर्मी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो अचानक लैट्रिन जाने के बाद वो गिर पड़ा और उसको लेके एसी रूम में उसका ट्रीटमेंट करने का कोशिश किया, लेकिन कोई दवा या कोई कुछ नहीं मिला। क्या लग रहा सर कि ये पानी की वजह से मौत हुआ या गर्मी का? अब उसकी मौत का कारण तो भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा ना, पानी से मरा कि गर्मी से मरा। तेलंगाना असेंबली के लोगों में उर्दू जबान को नजरअंदाज कर दिया गया। इस मामले पर तेलंगाना कानून साज काउंसिल में कांग्रेस रुकन मोहम्मद अली शब्बीर ने एहतजाज दर्ज कराया। तेलंगाना असेंबली के लोगों में उर्दू जबान को नजरअंदाज किए जाने पर अफसोस जताते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने हलफ लेने से इनकार कर दिया। ताहम मोहम्मद अली शब्बीर के एहतजाज पर तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मुस्बत रद्दअमल का इजहार किया। वज़ीर आला ने तेलंगाना असेंबली के लोगों में उर्दू जबान को शामिल कराने का यकीन दिलाया। केसीआर की यकीन दहानी के बाद मोहम्मद अली शब्बीर ने कानून साज काउंसिल की रुकनीत का हलफ लिया। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग रोधक सीमेंट।